We have created a course outline also, where we have tried to cover all the points, all the modules here. And if you can see my screen, I have divided into the different chapter. In chapter one, we will go through the introducing the concept of cloud computing, right? Cloud vendor, what is Salesforce, right? Then we have chapter two, uh, about the database, right? We will go through about the objects, what is objects. For fresher, you might get confused about this terminology. You might be, you know, hear the first time these terminology like OWD, relationship, what is for, field level security, right? So you don't need to worry about. We will cover every point, right? And we will try to make this outline available on the portal also, so that if we are missing any points, you can at least mention that okay, this point is not covered, this topic is not covered. So we'll try uh, to make available the outline, course outline here. Okay. uh any question, any of you? हम लोग इस कोर्स को बेसिकली हिंदी इंग्लिश दोनों के कॉम्बिनेशन में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? कोई क्वेश्चन अभी तक? नो सर। No. नो सर। ओके, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू basically explore about what is cloud computing, right? So in this lecture, uh, basically we will explore what cloud computing is, its benefits, the delivery model, its a real world application. We will also look at the Salesforce, a leading cloud vendor, right? As I mentioned in our last class, it is a leading cloud vendor, right? uh, and its powerful ecosystem. Okay, so what is cloud computing? In last class, I had explained it about the cloud, right? So what is computing? Computing means if we want to process uh, any instruction, that is computing. Instruction means if I hmm. So there is a, let's say there is a system. In system, if we ask something, right? So let's say we do Google, right? And if we search about what is Salesforce, right? So what Google does, Google has a database of all the sites, right? So Google finds all the servers who has relevant output for this question, this input, right? So what Google does, it will look into the web, it will list out all the websites, and it will basically give you all the list of websites in your browser, right? Let me try here. Once again. Yeah. हेलो। ओके। What is Salesforce, right? If you can see here,
First is salesforce.com, salesforce.com, simple learn, right? Take target, Wikipedia, right? So uh, it is computing, right? The backend process is called computing, means it is processing our request and providing the result, right? That is called computing. Okay. Is Yes. it clear to everyone? Yes. Okay. Yes, sir. So now, what is cloud computing? So, cloud computing is the delivery of computing service like server, storage, and application over the internet, right? Because uh, cloud is nothing but internet. Here also we have mentioned, right, over the internet, right? Instead of owning physical infrastructure, means we don't need to rely about on our physical infrastructure, means our laptop, right? Our system, right? User can rent the service and pay as you go basis. Means uh, in cloud computing, basically you have to pay what you are using. Okay. For an example, I'll cover some more example later on. But if uh, if you have any confusion about what I am talking about, what I am trying to explain you, you can ask me. I think this is the basic thing. Like if we want any services and only we want few services, okay? For that, we have to pay for the specific services only. That is what we can leverage in cloud computing, right? Because the services, the storage, everything is on cloud itself. For an example, if you are a iPhone user, so uh, iPhone also provide their cloud storage, right? And basically you have to pay uh, let's say for you have need for 50 GB only, okay, in iOS, uh, 50 GB only. So in iOS cloud, you need 50 GB only. So iPhone, means Apple provides some kind of pricing, right, for 10 to 50 GB, kind of 10 to 50 GB you have to pay uh, 200 a month, right? 50 to 100 GB you you have to pay 500 per month. These are not the real data. We don't know how much they are charging for, but they provide some kind of you know the offer and the products, right? So if you need only 10 to 50 GB storage capacity, all you have to pay 200 per month, right? You don't need to pay 500 per month because you don't need this much space requirement. Getting my point, right? So basically, the cloud computing technology offer increment, uh, flexibility, scalability, and the cost efficiency also, right? Because of cloud only, they are able to provide such kind of offers, such kind of flexibility, right? So user has to pay what they are using, correct?
Yes. If you have heard about Amazon Web Service, have you heard about Amazon Web Service, AWS, Microsoft Azure? Anyone? Yes, sir. Right? Okay. Superb. Let me accept Superb. Hmm. So AWS, what it does, it provides so many services there. For an example, S3, AWS S3. If you have heard about S3, provide service where you can store your files. You can manage your files. Okay. There are so many services AWS provide. One of these, and these all these services are based on cloud itself. Okay. So on-demand sales service means you need to pay what you're using for. Scalability, it is scalable based on your usage. It scale itself. Okay. Cost efficiency, user pay only for the resource there, and the remote accessibility. Remote accessibility means because it is a cloud computing, it is over internet, anyone can use from any place, right? Okay, so we will see some key benefits of cloud computing. We have already covered this, right? Means cloud computing provides several key benefits. Like first, on-demand resources ensure you to get what you need when you need it. When you need it, it will be available there, right? Scalability allow you to handle fluctuation in demand easily, and cost efficiency means you only pay what you use, right? That is the best thing we can get there in cloud. And finally, the remote accessibility allow you to work from anywhere with the internet connection. All you need to have the internet connection. Got it? Okay. Now we have these key cloud computing delivery model. There are three main cloud service model. Means in cloud, what all types of services we get. Okay. So we have these three: IaaS, infrastructure as a service, then PaaS, then SaaS, platform as a service, and software as a service. So IaaS offer virtualized resource such as storage and server. This the storage and server means IaaS. Basically, यूजिंग आईएएस क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मींस आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर क्लाउड आपको अवेलेबल कराया जाता है, ठीक है, जिसको आप यूज कर सकते हो। जैसे एडब्ल्यूएस का हमारा अगर हमें रिक्वायरमेंट है 10 GB रैम, 1 TB हार्ड डिस्क, और एनीथिंग वॉट एवर द सर्वर कॉन्फ़िगरेशन इज देयर, राइट? अगर रिक्वायरमेंट है कुछ इस तरह का, राइट? सो AWS कैन प्रोवाइड सच सर्वर, राइट? अब अगर सर्वर के बारे में थोड़ा सा बेसिक समझें, सर्वर होता क्या है, ठीक है? और आप आपने डेटा सेंटर का नाम सुना है इससे पहले? डेटा यस। सेंटर, ओके। बता सकते हो क्या होता है डेटा सेंटर? हु सेड यस? सर वहाँ पे जितना भी डेटा होता है वो स्टोर होता है। बहुत सारे वहाँ पे वो होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेज, जिसमें बहुत बहुत सारा डेटा स्टोर होता है। सर्वर टाइप का होता है, मतलब होस्ट। ओके। सो बेसिकली क्या होता है ना कि डेटा सेंटर क्या होता है कि
सर्वर स्विचेस, सर्वर हब्स, ठीक है, इनको यूज करके क्या होता है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली कंपनीज बनाती है वहां पे। वो समथिंग इस तरह के रैक्स डेवलप करते हैं, ठीक है। रैक्स में क्या होता है, हर एक रैक्स में वो सीपीयू, स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, ये सारा कुछ बेसिकली वो वहां पे सेटअप करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से होता है, और वहां पे मिलियंस ऑफ रैक्स होते हैं। मतलब एक नहीं, बहुत सारे रैक्स होते हैं, और उस रैक्स में क्या वो करते हैं बेसिकली, स्टोरेज यूनिट, सीपीयू, ये सारा कुछ है जो यहाँ पे स्टोर करते हैं, ठीक है, इन रैक्स, ठीक है, रैक वन, रैक टू एंड सो ऑन, ठीक है। गिव मी 1 मिनट ना, गिव मी 1 मिनट। Sorry. Okay. So we were talking about the data center. Sorry. Hmm. फिर इसके इमेजेस हम लोग देखें। कैन यू सी? ये कुछ इस तरह के डेटा सेंटर हैं जो डेवलप किए जाते हैं, उसमें इस तरह से रैक्स होते हैं, और उसमें बेसिकली ये स्विचेस, राउटर हब, यूजिंग स्विचेस, राउटर हब, सारे रैक्स को बेसिकली कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये देख रहे होगे, और हर एक रैक में क्या होता है, स्टोरेज यूनिट, सीपीयू, ये सब होते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो व्हाट इज लाइक इनसाइड AWS डेटा सेंटर, इफ यू कैन सी। AWS का डेटा सेंटर में क्या होता है, कहाँ से कैसे वो प्रोवाइड करते हैं हमारे को, एक कोई सर्वर का रिक्वायरमेंट है जिसमें कि 32 GB रैम चाहिए, 500 TB स्टोरेज चाहिए। कैसे वो, क्या कोई बैकएंड में कोई मैनुअली कर रहा है? नहीं, पूरा सिस्टम कर रहा है। ऑल दे हैव सेट अप दीज रैक्स, ठीक है। वहां पे ये सारे यूनिट्स हैं जो वहां पे सेटअप कर दिए गए हैं, और ऑन डिमांड, ठीक है, जैसे ही हम लोग डिमांड करते हैं, आई नीड दिस, एंड वंस वी पे, दे allocate वन ऑफ देयर रैक्स, ठीक है। लेट्स से दे allocate रैक नंबर 120 समथिंग, ठीक है, based on our requirement. Now, let's assume each racks is having the capacity, uh, third, let's say 8 GB. Okay, let's say I'm just giving you an example so that you can visualize yourself कि exactly backend में हो क्या रहा है, कैसे होता है, ठीक है, ठीक है। And 8 GB RAM, and each have 200 or 500 GB storage. Okay, and if someone has a need for 32 GB RAM and approx 200 GB uh, storage, so what they does, their system, बेसिकली ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली होता है, वहां पे सिस्टम बनाया गया है, बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो बेस्ड ऑन डिमांड, उनके पास जब डिमांड जाता है वो क्या करते हैं, जब हम लोग डिमांड करते हैं, ठीक है,
हम लोग कहाँ से डिमांड करेंगे? यूजिंग देयर साइट, है ना? ये अमेजोन का साइट है, AWS का साइट है, ठीक है। यूजर क्या करता है? जो यूजर है वो सिंपली साइट, यूजिंग साइट, राइट, वो अपना रिक्वायरमेंट जो है यूजिंग साइट वो बताता है। AWS का सिस्टम क्या करता है? वो क्या करेगा बैकएंड में? ये 1 2 3 4, रैक 1 to 4 तक उसको एलोकेट कर देगा, राइट। तो ये जो ये 1 to 4 जो है, ये पूरा का पूरा ये एलोकेट कर दिया जाएगा, राइट, ठीक है। अगर गोइंग फॉरवर्ड, अगर इनके इस यूजर का, लेट से कि वो डिमांड और इंक्रीज होता है, तो ऑटोमेटिकली डिफरेंट ट्रैक्स विल बी एलोकेटेड। ठीक है, ये समझ में आया सबको? Yes. यस। यस। ठीक है, ओके। ओके, सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मींस हियर, ये अमेजोन क्या कर रही है? एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया उसने, है ना, एंड वो यूजर को बेसिकली अवेलेबल करा रही है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे बेसिकली सी, अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम आप खुद से जब इंस्टॉल करोगे, सेटअप करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी इश्यूज आएंगे, माइट बी। पहला तो कि हमें इसके मेंटेनेंस का कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, राइट। वो मेंटेन कौन कर रही है? AWS, अमेजॉन कर रही है अपने डेटा सेंटर को, है ना। ये अ, इतने बड़े सिस्टम को बेसिकली मैनेज करना, एंड बेसिकली ये सोच रहे हो आप कितना हीट जनरेट करेगा, और ये सिस्टम है जो 24/7 अवेलेबल होना चाहिए, है ना। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, अब आप राजस्थान में हो, आपको ये रिक्वायरमेंट है, तो आप उसके लिए अलग से पूरा कूलिंग सिस्टम एंड ये सब सेटअप करने की जरूरत नहीं है, राइट। ये सारा कुछ टेक केयर कर रही है अमेजोन, एंड अमेजोन will allocate you the server to use, right? So infrastructure as a service में क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है कंपनी, आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर सकते हो, राइट। Then the second one is platform as a service. It provides a platform for developer to build application without worrying about the infrastructure. Okay. जैसे हमारा लास्ट जो कॉल था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हेरोकू के बारे में पढ़ा था, है ना। सेल्सफोर्स ने एक्वायर करा है हेरोकू को, राइट। सो हेरोकू क्या करती है? एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करती है जहां पे आप अपने एप्लीकेशन को लाइव कर सकते हो। डन, ठीक है। देन थर्ड हमारा आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इट डिलीवर्स रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट। मतलब हमें ईमेल भेजना है, ठीक है। सो गूगल ने जीमेल एक एप्लीकेशन डेवलप कर रखा है जिससे कि आप ईमेल गेट करना, राइट, और ईमेल सेंड करना, एंड ईमेल से रिलेटेड बाकी फंक्शनैलिटी आप यूज कर सकते हो। द सेम सेल्सफोर्स ने क्या कर रहा है, इसने अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखा है सेल्सफोर्स का, है ना। क्लाउड बेस्ड CRM डेवलप कर रखा है, और जिसको जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ये CRM आपको प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, आपको CRM की नीड है, सो आपको कोई सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, मींस आपके सिस्टम में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड ब्राउजर, एंड यूजिंग ब्राउजर यू विल बी एबल टू मैनेज योर कस्टमर्स यूजिंग सेल्सफोर्स CRM सॉफ्टवेयर, राइट, ठीक है, ओके। Yes, sir. यस।
कहीं पे कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हो। सो नेक्स्ट, cloud computing infrastructure. So cloud infrastructure consists of servers, storage, networking and database. These हम लोगों ने ये सारा कुछ अभी समझा, राइट? सर्वर्स अमेजोन प्रोवाइड करती है, अमेजोन स्टोरेज भी प्रोवाइड करती है, S3, है ना? राइट। सो ऑल प्रोटेक्टेड बाय एडवांस सिक्योरिटी मेजर. Together, these components deliver a seamless user experience, ensuring the data is always accessible and secure. एक एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जब कोई भी यूजर सेल्सफोर्स का प्रोडक्ट परचेज करता है, ठीक है? सो व्हाट सेल्सफोर्स डज बेसिकली, सेल्सफोर्स के बहुत सारे डेटा सेंटर है ग्लोबली, है ना? कुछ एशिया में है, यूरोप में है, और लेट्स से मिडल ईस्ट में है, ठीक है? लेट्स से इंडियन इंडिया का कोई कस्टमर है, उसने सेल्सफोर्स का सॉफ्टवेयर परचेज करा, CRM, अपने कंपनी के एज अ कस्टमर को मैनेज करने के लिए, ठीक है? सो उनका उनका जो डेटा सेंटर कौन सा एलोकेट होगा, नियर बाई जो इंडिया के आसपास है। अगर इंडिया में है डेटा सेंटर, तो इंडिया का डेटा सेंटर एलोकेट होगा। लाइक व्हाट सेल्सफोर्स डज, सेल्सफोर्स क्या करती है कि जो भी आपका डेटा है उसका एग्जैक्ट रेप्लिका 3 मोर, 3 डेटा सेंटर में वो एज अ बैकअप रखती है, सो दैट अगर कोई भी ऐसा मिस हैपनिंग हो जाए, लेट्स से कि आप इंडिया का जो डेटा सेंटर है उसमें आग लग गया, ठीक है? तो सेल्सफोर्स का सिस्टम ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगा दूसरे डेटा सेंटर पे, सो दैट उनका सर्वर जो है वो कभी डाउन नहीं होगा, ठीक है? समझ में आया? लेट्स से कि या इंडिया के डेटा सेंटर में कुछ भी हो गया ना, भूकंप आ गया, डेटा सेंटर चला गया, वो यूरोप के जो भी है, ठीक है? तो उनका जो मैकेनिज्म है वो क्या करते हैं, एक तो डेटा सिक्योरिटी पे, राइट, सिक्योर रखते हैं, और ये सारा कुछ है जो वो अपने एंड पे वो टेक केयर करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर चार्जिंग यू, बिकॉज यू आर यूजिंग देयर सॉफ्टवेयर टू मैनेज योर कस्टमर्स, है ना? CRM सॉफ्टवेयर वो आपको इजिली प्रोवाइड कर दे रहे हैं। बैकएंड में जो भी हर्डल्स है, जो भी चैलेंजेस हैं, वो अपने एंड पे उसको बेसिकली फेस कर रहे हैं और उसको फिक्स कर रहे हैं, ठीक है? ओके। सिक्योरिटी एंड कंप्लायंसेस, राइट? डेटा जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखना, एक्सेस कंट्रोल की कौन सा यूजर एक्सेस कर सकता है, राइट? इफ यू आर यूजर, सो वहां पे बेसिकली वो आपको ऑथेंटिकेट करेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू एक्सेस इवन देयर। हम लोग एक सेल्स फोर्स में हम लोग सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? जिसमें डिफरेंट लेवल के सिक्योरिटी हैं, फ्रॉम ऑर्ग टू फील्ड लेवल तक हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? So basically, security is crucial in cloud computing, right? Providers encrypt their data both at rest and in transit also, enforce access control and conduct regular security audits. They also comply with regulation like GDPR, HIPAA and other, like, see, compliances क्या होते हैं, जैसे एक PCI कंप्लायंस होता है, राइट? कंप्लाइंसेज, बहुत सारे कंप्लाइंसेज होते हैं। कंप्लाइंसेज इज नथिंग बट बहुत सारे जो रेगुलेटरी सिस्टम हैं, उन्होंने धीरे धीरे रूल्स बनाने शुरू किए, ठीक है? जैसे PCI कंप्लाइंस, दैट इज PCI कंप्लाइंस पेमेंट कार्ड, हाँ। सो तो उसको कंप्लाइंसेस बोलते हैं, मींस आप उन सारे कंप्लाइंसेस को फॉलो कर रहे हो,
ऑडिट में बेसिकली ये सारे पॉइंट्स हैं जो ऑडिट किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पीसीआई कंप्लायंस। सो सेल्सफोर्स इज नॉट अ पीसीआई कंप्लायंस, इट मींस कि आप पीसीआई कंप्लायंस के अंदर में ये होता है कि आपका अगर सिस्टम पीसीआई कंप्लायंस अप्रूव्ड है, देन यू विल बी एबल टू सेव द पेमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, पेमेंट कार्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन योर सिस्टम। ठीक है। सो नॉर्मली क्या होता है, जो पेमेंट गेटवे होते हैं वो पीसीआई कंप्लायंस होते हैं। ठीक है। एंड वहाँ पे हम लोग कार्ड का इंफॉर्मेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन कंप्लायंस वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। राइट। द सेम ये सारे कंप्लायंसेस वगैरह सब कुछ है जो कंपनी अपने एंड पे मैनेज करती है। ठीक है। ओके। सो यहाँ पे हम लोग कंसिडर अ कंपनी होस्टिंग एन ई कॉमर्स वेबसाइट। Okay. Traditionally, they would need to invest a physical server and IT staff also, right? Cloud computing allows them to rent resource on demand, scale during the peak time, right? And reduce cost afterward. जैसे for an example, uh, mm, फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स से गूगल ड्राइव का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है ना। गूगल ड्राइव में क्या होता है, एक सर्टेन स्टोरेज के बाद वो चार्ज करते हैं, डिफरेंट चार्ज करते हैं, राइट। गूगल ड्राइव में आप, सॉरी, गूगल ड्राइव में, या फिर एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। अगर हम लोगों ने सर्वर ही रेंट करा है, ठीक है, हम लोगों ने डोमेन लिया एंड एक सर्वर लिया, बेसिकली कोई सर्वर हम लोगों ने रेंट करा। ठीक है। ओके, बेसिकली दिस क्लास इज गोइंग टू बी एंड इन 1